So hi everyone, welcome to you all in my another video. And today with us Swapnil, and Swapnil is basically an Indian pharmacist. So he completed his diploma and bachelor from India. So right now he's working as a trainee pharmacist in Dubai. So without any experience, so we will know about his journey, how he got this job, and because a lot of you or people always ask this kind of job, okay, how we can get a job without writing any exam. So we'll try in English even in Hindi as well. So Swipnil is basically from Maharashtra. So now I'm going to start basically. So hi Swipnil, how are you? Hi, sir. Hi, Dr. Akram Ahmed. I'm quite well, sir. Okay, so can you please give us your little bit about yourself, your please introduction, so we can start. Yeah. Sure, sir. Sure. So, my name is Swapnil Kailath Jore, and I'm basically from Buldana district, Maharashtra. And I have uh, I have recently graduated from Bangalore University, and I have recently joined in Dubai as a trainee pharmacist. So, I just came on a tourist visa with my college reference, and I gave interview in Dubai. So, the interview So we will like the start. interview. Yes, Swapnil will come to in that. Swapnil basically just completed his degree, so he got job. So can you please tell us what is the job? In this in trainee job, what basically the job you need to do? Is there anything need to be learned from their home country? For example, any Indian pharmacist is looking to migrate to UAE, so he need to learn some few things before he moved to Dubai, or directly he can come. तो बेसिकली उसमें So, उसमें आप लोग का जॉब का क्या जॉब करते हो, आपका काम क्या होता है इसमें, ट्रेनिंग फार्मासिस्ट so में? for trainee pharmacist, for trainee pharmacist, the work always will be like merchandising. That we have to arrange all these pharmacy products like medicines. Apart from medicines, or whatever the sport nutrition, skin care, eye care. There are many different ranges that are available here in Dubai. Like it's not like Indian market. In Indian market, we only have medicines, but when it comes to Dubai, like we have lot we have wide variety of products. Actually, when Like you are going abroad, this is not just a pharmacy. It can be like a mall, so you can buy whatever you need. Lot of the cosmetics. Apart from this, even I saw like umbrella in Australia. You can buy. Even you can buy like a normal shoe or this kind of thing. So a lot of things apart from pharmacy product, medicine product, you can buy. That's why Swapnil is saying a lot of products is there. So he's basically training pharmacist, nothing much. It's like a assistant pharmacist. He's not a pharmacist, but he is assisting, कि कौन कौन सी रैक में कौन कौन सी मेडिसिन खत्म हो गई है, कैसे उसको अरेंज करना है। और कभी कभी इनको जो है कंसल्ट इनिशियली शायद ना मिले, पर कभी कभी आपको कस्टमर से बात करनी पड़ती है, कस्टमर को क्या चाहिए उसको उसके हिसाब से, है ना। तो ये सब काम रहता है बेसिकली जो ट्रेनी फार्मासिस्ट होते हैं। तो स्वप्निल, आप ये बताओ कि आपको ये कैसे पता चला कि ये भी एक जॉब होती है, मतलब ट्रेनी फार्मासिस्ट की, और फिर आपने कैसे अप्रोच किया इंडिया से जब आपने बी फॉर्म किया? sure. So Dr. Akram, when I was in my second year of pharmacy, like these companies from the Dubai had agencies in India, and they would come to our college campus and they would take interviews. ओके। So that's where first time I came to know about So life and basically, aspects. Swipnil was a student in his college. So there is some consultancy. Basically, they hire the student and to place in the Dubai. So this is the same company. They come for the interviews. So Swipnil know about, so they always come and bring the student to the Dubai. तो उनको ऐसा पता चला कि बच्चे को वो ले आते रहते हैं। अच्छा, तो ठीक है। तो फिर आपने अप्रोच कैसे किया, आपने क्या किया, आपने जॉब खुद से ढूंढा या आपको ये एजेंसी के थ्रू आप भी गए वहां पे, आप कैसे वहां दुबई पहुंचे? Uh, I came on tourist visa, to be honest, and I simply went for the interview here in business. I waited for my second publish. The process went for 1 month. मतलब आप क्या समझते हो कि ये जो आपने किया, आपको तो जॉब मिल गया, क्या ये इंडिया से कोई भी फार्मासिस्ट है वो आता है तो उसको ऐसा हो सकता है क्या, मतलब उसको भी ऐसा मिल सकता है?
क्या ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल कोई भी बच्चा बी फॉर्म किया इंडिया से या फार्म डी किया और वो एक 3 महीने का विजिट वीजा लेके जाए दुबई में, क्या उसको जॉब मिल सकती है या नहीं? आपको क्या लगता है? आपको आपके एक्सपीरियंस से क्या है? Sure. So, sir, like we can't give assurance about any student who is coming to Dubai will get job 100%. Even I was not sure whether I'm gonna get. Yes, Like basically, I was not there is sure. no guarantee, but this is like a risk, so you have to take risk. मतलब आपको कोई ऐसा थोड़ी कि आपको घर पे आके कोई आपको लेटर देगा, भैया आप आ जाओ, आपकी जॉब लगे, ये आपको हम टिकट दे रहे हैं, ये आपका रूम है रहने का। ये सारा काम आपको खुद से ही करना है। तो अगर स्वप्निल, अगर तुम रिस्क नहीं लेते तो तुम शायद अभी भी इंडिया में ही होते। तो ये आपने रिस्क लिया कि Sure. आपने एक विजिट वीजा लिया 3 महीने का, आपने अपना टिकट किया और आप दुबई में पहुंच गए और फिर आपने वहां पर जॉब सर्चिंग किया, फिर आपको ये मिल गया, है ना? ठीक, थोड़ा बताओ, एकदम थोड़ा सही डॉक्टर। थोड़ा खुल के बताओ। मैं ज्यादा बोलो, मैं आप ज्यादा बोलो, लोगों को बताओ कि आपने कैसे किया, क्या किया। तो फिर मतलब ये लक के ऊपर डिपेंड रहता है मेरे को लगता है। और जब इधर आना पड़ेगा तो आपको, मतलब जिसको भी ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के तौर पर जॉब करनी है, उसको इधर आना पड़ेगा। तो इधर आने के बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू देने के बाद वो लोग बोलते हैं वेट करने के लिए, तो सेकंड राउंड थर्ड राउंड सब होने के बाद ऑफर लेटर दे देते हैं। लेकिन लक के ऊपर भी डिपेंड करता या तो लक के ऊपर तो दोस्तों हर चीज डिपेंड करती है, पर ये है अगर आपको ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की जॉब है, वो आज भी मिल रही है। लोग हमेशा कितना ही बोलेंगे जॉब नहीं है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, पर लोगों को जॉब अभी भी मिल रही है। तो एक तरह से ये रिस्क है, पर आपको रिस्क लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपको आगे बढ़ना है तो, है ना? अगर ये स्वप्न ने रिस्क नहीं लिया होता तो ये आज भी इंडिया में होते, है ना? तो ये एक अच्छी बात बताई कि वहां पे आप 3 महीने का विजिट वीजा लेके जाओ, फिर आप जॉब को ढूंढो, इंटरव्यूज जो है उसको देते रहो। वो राउंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और एट द एंड उनको तो लेना ही है। इन स्वप्निल को लें या किसी और को लें, मतलब जब आप इंटरव्यू देते हो तो उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो जो उनको अच्छा लगेगा उसको वो डेफिनेटली लेंगे। तो सुनील, ये बताओ कि है। और ऑन वो, एन, यस। मैं इंटरप्ट फॉर मिनट, वो लोग ने क्या, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स लेते हैं। उनको, लोगों को सब पता है अपने इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी रेप्यूटेड है, या अच्छी यूनिवर्सिटी लेते हैं, जैसे कि पुणे, अपने बॉम्बे, और ये बैंगलोर, हाँ, तो मतलब ये बड़ी बड़ी बेसिकली बड़ी यूनिवर्सिटी जो से। भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में हम कैसे कहते हैं, जैसे कि राजीव गांधी हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी है बेंगलोर का, है ना? तो वो कर्नाटका में जितने भी कॉलेजेस हैं वो उसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी को डेफिनेटली, वो उसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ही बच्चे चाहेंगे वो। वैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी से मुझे नहीं लगता। डीम्ड हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी से बहुत जो कम। प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह से बहुत सारे लोग कर लेते हैं, वो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा कम चांस रह सकता है, ऐसे जैसे स्वप्निल ने बताया। मगर अगर आपने एग्जाम पास करके जाते हो तो फिर आप इक्विवेलेंट हो जाते हो, आप प्राइवेट से हो गवर्नमेंट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मगर आपकी मेन, मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि फार्मेसी तो आपने पढ़ाई किया, मेन एक ये इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपने इंटरव्यू कैसे दिया, कैसे आपने क्वेश्चंस को आंसर किया, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, वो बहुत ही मैटर करेगा यहाँ पर जॉब लेने के लिए। अच्छा स्वप्न, ये बताओ, ये सैलरी यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक ट्रेनी फार्मासिस्ट को कितनी मिल जाती है? तो कोई सिंगल बंदा हो, उसको एनएफ है वहां रहने के लिए, और कितने पैसे सेव कर सकता है इंडिया में के हिसाब से? ट्रेनी फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम सैलरी रहेगी 3,000। और 3,000 से अपने खर्चे के ऊपर है। और लाइक 1,500 और मोर देन दैट, लाइक 2,000 के वी कैन सेव। 2,000 बच सकते हैं हमारे ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत टाइट रह के खर्चा किया, मतलब खर्चा कम रखा तो। लेकिन मेरा तो एक्सपेंस ज्यादा है, तो मुझे 1,500 का एक्सपेंस है, और 1,500 मेरा बचता है। तो 1,500 मतलब इंडिया का 30,000 बचते हैं। तो स्वप्निल ने बताया कि जैसे कि 3,000 एक मिनिमम सैलरी होती है वहां पर, और ये उन्होंने बताया था मुझे इस इंटरव्यू से पहले कि ये कंपनी का स्टैंडर्ड है कि वो हर कंपनी को ट्रेनिंग के लिए 3,000 ही देते हैं। 3,000 का मतलब है 60,000 इंडियन रुपीज, ठीक है? तो उसमें से आधे आपके खर्च हो जाएंगे अगर आप सिंगल हैं तो, और आधे आप बचा सकते हो। उससे थोड़ा सा भी ज्यादा भी जो बचा सकते हो, ये आपके अपने डिपेंड करता है कि आप कैसे रह रहे हो। क्योंकि ऐसा होता है मोस्टली कि आपने एक घर लिया हुआ होता है, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं ना, तो वो डिपेंड करता है कितना आपको रेंट है, रहना खाना है, सब मिलाकर फिर भी आप 30,000 पर मंथ सेव कर सकते हो, जैसे कि स्वप्निल ने बताया। अच्छा स्वप्निल, आप कुछ कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वो जो इंडिया से कोई आना चाह रहा है, डिप्लोमा किया है या बी फॉर्म किया हुआ है, तो ये सेम जॉब के लिए? श्योर।
अगर कोई भारत से माइग्रेट करना चाहता है दुबई, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि मतलब अगर आपसे मतलब दिल से निकलता है कि आपको अब्रॉड जाना है और फॉरेन में जॉब करना है, तो आप इधर आ सकते हो, ट्राई कर सकते हो। लक के ऊपर ही है एक्चुअली। और रिस्क रिस्क लेके इधर आ सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो। उसके बाद हुआ तो तुम्हारा ड्रीम पूरा हुआ, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा इधर, तभी वो समझ पाएगी। वो लोग कभी ऑनलाइन इंटरव्यू से देते नहीं। मैंने जब कॉल करके पूछा था सभी कंपनीज को, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें तुम्हें फिजिकली दुबई में आना पड़ेगा, उधर आके फिजिकली इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, फिजिकली आके इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे ले लिया। यस, तो फिजिकली आपको वहां जाना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। अगर आप चाहो कि इंडिया से ही आपको जॉब मिल जाए ट्रेनिंग की, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। अनलेस आपका कोई जानने वाला हो वहां पर किसी अच्छी पोजीशन पे, वो आपको ऑफर लेटर दे दे, वो एक अलग केस है। पर आप अगर कोई नहीं है आपका और आप अकेले से जाते हो, तो फिर थोड़ा सा ये है। और स्वप्निल बेसिकली ये उनको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस पे बेसिकली गए ये। जस्ट उन्होंने डिग्री कंप्लीट किया था और फिर वहां चले गए थे विदेश वीजा लेके। तो इनका प्लान बेसिकली ये है कि 2 साल के बाद ये जो है, या तो ये डीएचए लिखेंगे, दुबई में ही इनको रहना हुआ। अदरवाइज वैसे तो स्वप्निल का सपना ये है कि वो ये जो है ऑस्ट्रेलिया आ जाए 2 या 3 साल के बाद। तो उन्होंने बेसिकली हमारे मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था कि ये ऑलरेडी यहाँ पे है, इनको एक जॉब मिल गई है। तो फिर मैंने इनको अपना नंबर दिया उनके, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कीजिए अपने साथ में कि आपको कैसा है। तो देखो, एक बात ये भी है कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है ऑस्ट्रेलिया आने में, तो 5-6 लाख तो लगते, ठीक है। आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो, 1-2 साल के लिए आप दुबई चले जाओ या किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में जाओ, वहां कुछ पैसे अर्न करो, और उसके बाद फिर आप लोग ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, कनाडा चले जाओ, है ना। आपको कहीं भी जाना है, रिस्क तो है, मगर रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। जैसे प्लान में ये कहा कि रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर आपको भाई आगे बढ़ना है। तो अगर आपको अगर नहीं बढ़ना है, तो भाई अपनी जगह जहां पर भी हो आप वहीं पर खुश रहो, है ना। अगर आपको कोई कमेंट्स है तो प्लीज लिव कमेंट प्ले, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज और कुछ कहना चाहते हो आप? आप कुछ बोलना चाहते हो स्वप्निल? मैं तो यस। श्योर श्योर, मैं तो रेकमेंड करूंगा कि अगर अगर दुबई में करियर करना है, तो मतलब एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली अब मतलब प्रॉब्लम क्या है डीएचए एग्जाम का, कि दुबई का मतलब क्या है, पूरे गल्फ का है कि 2-3 साल एक्सपीरियंस मांगते हैं। कुछ कंट्री 3-3 साल मांगती है, कुछ जगह 2 जगह। तो अगर आपको डीएचए एग्जाम लिखना है तो उसकी एलिजिबिलिटी ये होती है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो, और तो फिर आप जो 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप जो है फार्मेसी टेक्नीशियन का एग्जाम लिख सकते हो, या आपने अगर बी फॉर्म या फार्म डी एम फॉर्म किया हुआ है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है रिटेल फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, तो फिर आप लोग जो है डीएचए का एग्जाम लिख के तब आप जाओगे, तो फिर आपको डेफिनेटली आपको 5,000 या उससे ऊपर ही सैलरी मिलेगी। मगर आप अगर ट्रेनिंग पे जाओगे तो 3,000 ही मिलेगी। और ये ना, तो यही स्वप्निल ने कहा कि आप एक्सपीरियंस लेके जाओ तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके स्वप्निल, फिर यही था। यस, कुछ कहना चाहते हो आप लास्ट में? यस। अगर अगर मतलब फैमिली कंडीशन बहुत सैचुरेशन पे है और बहुत बुरी है, तो वो फिर ट्रेनिंग के लिए ट्राई कर सकते हो आप इधर। ले, लेकिन फैमिली कंडीशन अच्छी है और तुम थोड़े समय निकाल सकते हो भारत में, जैसे कि 2-3 साल। तो 2-3 साल एक्सपीरियंस बना के बहुत सारे एग्जाम्स लिख सकते हैं। मिडिल ईस्ट के भी लिख सकते हैं हम, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के भी एग्जाम लिख सकते हैं एक्सपीरियंस बनाने के बाद। तो वही एक प्लस पॉइंट ही मुझे लगता है जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात आती है। हाँ, तो मेन बात यही है, अगर आपकी फैमिली कंडीशन मतलब फैमिली का आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपको अलाउ करती है, तो ये उस पर डिपेंड करता है आपके। मगर आपको अगर जस्ट जीरो एक्सपीरियंस है, फिर भी आपको अगर चांस लेना है, फिर भी आप दुबई जा सकते हो, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।